بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری نازک بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ اللہ کی امان میں ہوں گے۔ آج کی یہ محفل جو ہم یوٹیوب کے ذریعے سجا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف جانکاری دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ڈوبتے ہوئے دل کو ایک تنکے کا سہارا دینا ہے۔ ناظرین، اکثر ہم زندگی کے تھپیڑوں سے ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اب تو سب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں انسان کی تقدیر ختم ہوتی ہے، وہیں سے اللہ کی تقدیر اور اس کی غیبی مدد شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب سب راستے بند تھے اور اچانک کوئی راستہ کھل گیا، تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ آپ کی یہ گواہی کسی اور کا ایمان تازہ کر سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 8 نشانیاں بتانے والا ہوں جو اگر آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ عرش والے نے آپ کے دل اپنے خزانے کھول دیے ہیں۔ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارو، ہمارے نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی گمان رکھتا ہے جیسا بندہ اللہ کے ساتھ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ میرا رب میری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا، تو یقین مانیے وہ بھیجے گا۔ اللہ کی غیبی مدد کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پہلی نشانی، دل کا اچانک مطمئن ہو جانا۔ میرے پیارے ناظرین، پہلی نشانی جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے دل کا سکون۔ تصور کیجئے، باہر طوفان ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، قرض کا بوجھ ہے یا بیماری نے گھیر رکھا ہے، لیکن اچانک آپ کے دل کے اندر ایک ایسی شانتی، ایک ایسا اطمینان آ جاتا ہے کہ آپ کو ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرا اللہ ہے۔ یہ سکون کہاں سے آیا؟ یہ سکون کوئی بازار سے خریدی ہوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الفتح آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون اتار دیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے حالات خراب ہیں لیکن پھر بھی آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کا دل گھبرا نہیں رہا، تو مبارک ہو، یا اللہ کی غیبی مدد کا پہلا اشارہ۔ وہ آپ کے معاملات کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ مصیبت بڑی تھی پر دل بڑا شانت تھا؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں یا اللہ تیرا شکر ہے ضرور لکھیں۔ میرے پیارو، لوگ کہیں گے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اتنی پریشانی میں مسکرا رہے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ عرش والے نے آپ کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، خوف کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جسے اللہ پر بھروسہ ہو جائے اسے دنیا کا کوئی ڈر ہلا نہیں سکتا ہے۔ دوسری نشانی، اچانک نیک خیالات کا آنا اور گناہ سے بیزاری۔ جی ہاں دوستو، دوسری بڑی نشانی جو یہ بتاتی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، وہ ہے آپ کے خیالات کا بدل جانا۔ آپ کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے، اچانک دل میں تڑپ اٹھی کہ ہائے، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ کل تک دنیا کی باتوں میں مگن تھے، آج اچانک جی چاہ رہا ہے کہ قرآن کھول کر پڑھ لوں۔ یہ جو تبدیلی ہے یہ اچانک نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک اپنی غلطیوں پر رونا آنے لگے
अगर आपको महसूस हो कि बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया है, अब मुझे सुधरना है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत ने आपको पुकारा है। जी हाँ दोस्तों, यह गैबी मदद का वह इशारा है जहां अल्लाह पाक साफ करके किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। तो अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके दिल में अल्लाह की याद ताजा हो रही है तो यह भी एक इशारा है। इसे इस्तिफाक ना समझे, अल्लाह कभी इस्तिफाक नहीं करता। तीसरी निशानी, वसीलों का अचानक बन जाना। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, गौर कीजिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हर तरफ से ना सुनने को मिल रही थी, लोग आपके मुंह पर दरवाजे बंद कर रहे थे, और फिर अचानक एक ऐसे शख्स का फोन आता है या कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसे आप जानते भी नहीं, और वह काम जो महीनों से अटका था मिनटों में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मिनटों में हो जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, इसे दुनिया वाले किस्मत कहते हैं, लेकिन हम मोमिन इसे अल्लाह की गैबी मदद कहते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए फैसला कर देता है तो वह उन रास्तों से रिस्क और मदद भेजता है जहां इंसान वहम व गुमान भी नहीं जा सकता। कुरान पाक में सूरह अत-तलाक आयत नंबर 3 में मेरा रब साफ साफ फरमाता है, वह उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। मेरे प्यारों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके बंद काम खुद ब खुद खुलने लगे हैं, तो यह संकेत है कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। यह इशारा है कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्श वाले ने जमीन वालों के दिलों को आपके हक में फेर दिया है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी अचानक वाली मदद देखी है तो अभी कमेंट में या अल्लाह तेरा शुक्र है जरूर लिखें। चौथी निशानी, तहज्जुद में आंख का खुलना और रोना आना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये निशानी तो इतनी अजीम है कि अगर ये आपके साथ हो रही है तो समझ लीजिए आप अल्लाह के VIP बंदों में शामिल हो रहे हैं। अगर आपकी आंख अचानक रात के पिछले पहर खुलने लगी है, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी शोर के, और उस वक्त आपके दिल में अपने रब से बातें करने की तड़प उठती है, तो ये मामूली बात नहीं है। ये वो वक्त होता है जब मेरा और आपका परवरदिगार आसमाने दुनिया पर आता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं। सही बुखारी। मेरे प्यारों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह आपको जगा देता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे बातें करना चाहता है। वह चाहता है कि आप अपना दुख उसे सुनाएं। और याद रखें, जिस बंदे ने तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह को मना लिया, उसकी जिंदगी में तो मौजे मरकल्स होना तय है। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपकी आंखें अल्लाह के सामने छलक जाती है, तो ये इस बात की दलील है कि बहुत जल्द आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की पाबंदी करो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रहा है और ये अल्लाह की नजदीकी का जरिया है। पांचवी निशानी, ख्वाबों के जरिए बशारत, सच्चे ख्वाब। नाज़रीन, रूहानियत की दुनिया में ख्वाबों का बहुत बड़ा मकाम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। सही बुखारी। अगर आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जिसमें आप खुद को इबादत करते देख रहे हैं, या आप सफेद लिबास
लिबास में हैं, या आप देख रहे हैं कि आप किसी अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जा रहे हैं, या आपको बुजुर्गों या अल्लाह के नेक बंदों की जियारत हो रही है, तो ये खुशखबरी है, ये रूहानी संकेत है कि आपकी परेशानियां खत्म होने वाली है। अक्सर जब बंदा बहुत टूट जाता है तो अल्लाह उसे ख्वाब में दिलासा देता है, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए मंजिल दिखाई गई थी। मेरे प्यारों, अगर आपको भी ऐसे रूहानी और सुकून वाले ख्वाब आ रहे हैं तो इसे आम मत समझिए, ये इशारा है कि अल्लाह ने आपके लिए खुशियों का एक नया सवेरा लिख दिया है। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे नाजरीन, अभी मत रखिएगा, अभी ये सफर आधा हुआ है। अभी 3 और ऐसी खतरनाक और रूहानी निशानियां बाकी है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी आखिरी निशानी है जिसके बाद अल्लाह कभी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता? जी हाँ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई किताब की बातें नहीं है, ये वो तजुर्बे हैं जो करोड़ों लोगों ने महसूस किए हैं। झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है, और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि उसका वादा सच्चा है, बस हमारे यकीन में कमी है। छठी निशानी, इम्तिहानों का जबरदस्त होना और फिर अचानक रास्ता मिलना। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। अक्सर लोग कहते हैं, मौलाना साहब, हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं, फिर भी मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही है, बल्कि और बढ़ रही है। मेरे अजीजों, याद रखिए, जब अल्लाह किसी को बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है तो उसे बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना होता है। तसव्वुर कीजिए, उस सुनार का जो सोने का आग में तपाता है, वो सोने को जलाना नहीं चाहता, वो तो उसका कोट निकाल कर उसे कुंदन बनाना चाहता है। अगर आपकी जिंदगी में आजमाइशें सख्त हो गई है, अगर आपको लग रहा है कि अब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है, तो ये इशारा है कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। कुरान पाक में सूरह अल बकरा आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी क्या तुम ये गुनाह करते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, जबकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। यहाँ तक कि रसूल और उनके साथी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदे की जुबान से यह निकल जाए कि या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं, बस वही वो लम्हा होता है जब गैबी मदद का फरिश्ता जमीन पर उतार दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी आज ऐसे ही किसी आजमाइश में हैं जहां हर तरफ अंधेरा है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि सवेरा होने वाला है। कमेंट में या अल्लाह रहम फरमा लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। 7वीं निशानी, लोगों का साथ छोड़ जाना। लोगों का साथ छोड़ जाना और तन्हाई में लज्जत मिलना, ये निशानी बहुत रूहानी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जिन पर आपको बहुत नाज था, वो मुसीबत के वक्त आपको तन्हा छोड़ देते हैं। आपको दुख होता है, आप रोते हैं, लेकिन मेरे प्यारों, ये दुख की बात नहीं है, ये तो अल्लाह का एहसान है। अल्लाह उन लोगों को आपकी जिंदगी से हटा देता है जो आपकी कामयाबी के बीच में आने वाले थे, या जो आपकी तवज्जो अल्लाह से हटाकर दुनिया की तरफ ले जा रहे थे। अल्लाह आपको तन्हाई इसलिए करता है ताकि आप उसकी तरफ झुके। जब दुनिया के सब दरवाजे बंद होते हैं, तभी इंसान का एहसास होता है कि अल्लाह का दरवाजा तो हमेशा खुला था। जी हाँ मेरे दोस्तों, अजीज दोस्तों, अगर आप आजकल खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको भीड़ से ज्यादा मुसल्ले पर सुकून मिल रहा है, अगर आपको लोगों की बातों से ज्यादा कुरान की तिलावत में मजा आ रहा है, तो ये अल्लाह की गैबी मदद का 7वां और बहुत बड़ा संकेत है। अल्लाह आपको चुन रहा है, वह आपको आम से खास बना रहा है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो अगर ये दुनिया आपको काट रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी रूह
اپنے اصلی گھر یعنی اللہ کے قرب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی دوستو، اور 8ویں نشانی دل میں یہ پکا یقین آ جانا کہ اللہ بہتر کرے گا۔